آیا کہ اس پاکستان کی ریاست میں ہمیں دو دستور قابل قبول نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اس ملک میں جو جبر کا ماحول ہے، جو پولیٹیکل ریپریشن ہے، یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور اس انتہا میں یہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں، اس کو رد کریں جتنا جس کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی زبان سے کر سکتا ہے تو وہ زبان سے کرے، اگر کوئی قدم اٹھا کر کر سکتا ہے تو وہ قدم اٹھا کر کرے۔ آج کے دن یہ احتجاج کی صرف ابتدا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کیا۔ آج یہاں پر اور ملک بھر میں اس وقت ریلیاں ہو رہی ہیں، ملک بھر میں کارکنان اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اس جبر کے ماحول کو ہم رد کرتے ہیں۔ یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اس نمائندہ حکومت کو مزید حکومت میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم عوامی پریشر کے ذریعے رخصت کریں گے، اور ہماری ڈیمانڈز میں یہ شامل ہے: اول کہ آئین پاکستان اپنی اوریجنل فارم میں 1973 کا بحال کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، صحافت کو آزاد کیا جائے، اور عمران خان صاحب سمیت پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کو قبول کرو۔ اس وقت پاکستان ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ آپ پر ظلم ہوا پیکا ایکٹ کے ذریعے، عدلیہ پر ظلم ہوا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، پارلیمنٹ پر ظلم ہوا زبردستی ان سے آئینی ترامیم کروا کر، اور رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے نمائندوں کو اٹھا کر۔ اس وقت الیکشن کمیشن پر ظلم ہوا ہے، ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی ثروت جو صدیوں سے ان کے پاس تھی، ہزاروں سالوں سے تھی، ان سے چھینی جا رہی ہے۔ ناامنی کا ظلم، بے روزگاری کا ظلم، معاشی ظلم، سماجی ظلم، ہر طرف ظلم و بربریت ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکانا۔ جو آدمی ظلم کے آگے سر جھکائے گا وہ مجرم ہے خدا کا، اور خدا اس کو سزا دے گا۔ لہذا ہم اس ظلم کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، اور ظلم کا مقابلہ، ظالم کا مقابلہ جب کیا جاتا ہے، سر اٹھایا جاتا ہے، تو پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر آپ سر جھکائیں گے اور ظلم کرے گا۔ اس نے رات کے وقت لائٹیں بجھا کے گولیاں ماری ہیں، پھر دن دیہڑے گولیاں مارے گا۔ لہذا ظلم کے مقابلے میں جو بھی جھکتے ہیں، پھر آپ کے گھروں میں بچوں کو مارے گا۔ فرعون کا دیکھا ہے آپ نے؟ لہذا ظالم کا مقابلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم پر فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں۔ ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں باہر نکلنا ہے، ظلم کے مقابلے میں فریاد بلند کرنی ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہر حال میں جہاں بھی ہو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، عوامی جدوجہد کے ذریعے، پرامن جدوجہد کے ذریعے 24-25 کروڑ کے مقابلے میں یہ مٹھی پر ظالم کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام یقین کر لیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ عوام کو ڈرانا، ہراس کرنا، خوفزدہ کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لہذا ہم نے خوف کی فضا کو توڑنا ہے، یہ ظلم کے مقابلے میں سر اٹھانا ہے۔ ہم نے ان ظالموں کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، ہم نے یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ اور انشاءاللہ یہ آوازیں اب چپ نہیں ہوں گی، یہ لبوں کو تالے نہیں لگیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہ جو استثناء دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف، سنت کے خلاف، آئین کے خلاف، دنیا کے جو عرف ہے جمہوری اس کے بھی خلاف ہے۔ لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بھی ظلم کا ضابطہ ہے۔
इस्तिस्ना भी एक जुल्म का ज़ाब्ता है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। और तुम कहते हो इस्तिस्ना देकर हमसे कोई पूछेगा नहीं, हम पूछेंगे, हमारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, हमारी माएं बहनें और बेटियां तुमसे पूछेंगे, हमारे पीरो जवां तुमसे पूछेंगे, हम सब पूछेंगे और तुमको जवाबदेही के कटहरे में खड़ा करेंगे। और इंशाअल्लाह अजीज, अगर कोई ये सोचता है हम डर जाएंगे, तो डरना भी क्या है, जुल्म के आगे सर झुकाना है, और ऐसे लोग खुदा के अजाब के मुस्तहिक होते हैं। आप जो निकले हो, आपने खौफ की फिजा को तोड़ा है, आपने लोगों के अंदर रिज़्क़ शऊर बांटने की कोशिश की है, आपने लोगों के अंदर शुजाअत की और गैरत और हमीयत की खैरात बांटने के लिए कदम उठाया है। इंशाअल्लाह हक जीतेगा, बातिल हारेगा, मजलूम जीतेंगे, जालिम हारेंगे, झूठे हारेंगे, सच्चे जीतेंगे इंशाअल्लाह। और जीत हमारा मुकद्दर है, हम मैदान में हाजिर है। जब तक जुल्म है हम मैदान में रहेंगे और जुल्म से टकराते रहेंगे इंशाअल्लाह। कि हम हमला करेंगे किसी पे, हम हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अगर अपने घरों से बाहर आकर सिर्फ खड़े हो जाएं तो जुल्म का हर ज़ाब्ता मस्मार हो जाएगा, जालिम भाग जाएंगे, जबर खत्म हो जाएगा। तो हम पाकिस्तानियों को दावत देते हैं, अपने आप को तवाना समझो, क्योंकि तुम तवाना हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें वदीयत की है अपनी नाइबी। निकलो अपने घरों से बाहर, खड़े हो जाओ चौराहों में, सड़कों के किनारे, और कहो कि हम बेजार हैं इस जुल्म के निज़ाम से, इस फरेब से। कहो कि हमारे वोट को लूटा गया, हम इस लूट को नहीं मानते। तो ये है हमारा पैगाम, और ये पैगाम लेकर हम बार बार पेश होते रहेंगे, और ये काफिला आप देखेंगे बढ़ता ही चला जाएगा। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये एहतजाज हमारा रात 8:30 बजे तक जारी रहेगा, मुख्तलिफ शक्लों में जारी रहेगा मुल्क के अंदर। बिस्मिल्लाह जी। काफी हुआ, आप कुछ कहें? आप कुछ कहो। ये मैं आपको लगाता हूँ, आपको लगे वहाँ से आ जाएगी। ये किसका माइक है? लगा दो सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 5 शराइत वाली बात करनी है जी, 5 शराइत वाली बात नहीं करनी। जब 5 शराइत वाली बात करते हैं ना, ये करना, ये करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौफी बरादरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे साथ आए जुलूस में शामिल लोग, उन सबका शुक्रिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया था। एक और भी लगा रहे हैं, वही लगाए, ठीक है। चले। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आईन पे हमलावर इस चोर, पहले हम चोर कहते थे, हम पे इल्ज़ाम था कि ये शरीफ लोगों को चोर कहते हैं। कल के अखबारात में उनके सबसे बड़े मामा IMF ने ऐलान किया है कि ये चोरों की हुकूमत है। IMF ने ऐलान किया है कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपए इन्होंने खाए हैं। कितने हजार अरब? 5,000 अरब रुपए, 5,000 अरब रुपए डकार के झूठ की हुकूमत बना के दूसरों के मैंडेट छीन के उनकी अक़लियतों की सीटें बेहुरियत जज के जरिए लेके
हुकूमत पे काबिज हुए और पाकिस्तान के वफादार बनकर हमारी पार्लियामेंट को बाज बना दिया, हमारे आइन को, हमारे फीका एक्ट आपको और हमारी जज उसको हमें हुक्म है। मैं आज थोड़ा सा मुल्ला बनता हूँ। कुरान करीम ने हर पैगम्बर को, अल्लाह पाक ने जब किसी पैगम्बर को, सुनिए भाई, सफेद कपड़े वाला, अल्लाह पाक ने जितने भी पैगम्बर पैदा किए हैं उनसे अल्लाह का पैगाम ये था कि आपने जाके जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना है, पत्थर आपने सहने हैं, तकलीफ आपने करनी है, गालियां आपको पड़ेंगी। अगर आपने, शर्त ये थी, अगर आपने एक छोटा सा टोला साथियों का पैदा किया तो फिर अल्लाह का हुक्म है नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब। हमारा टोला बन चुका है, अल्लाह पाक की वो शराइत हमने बना दी है। हमारा हर शहर में एक छोटा सा टोला बन गया है जो आइन की हिफाजत में, हक की लड़ाई में हमारे साथ है। अल्लाह पाक की ये शर्त पूरी है, अल्लाह पाक नस्र मिनल्लाहि व फतहुल करीब हमारे साथ होगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला जुलूस निकाला था, जब इबादत चुपके की जाती थी, और जब पहला जुलूस उन्होंने निकाला काबा की तरफ और अबू जहल ने उनको जट कर दिया था, जख्मी कर गए थे, उसके रिएक्शन में बाहुरियत उनके अजीज हमजा इस बुनियाद पे मुसलमान हुए थे कि भाई वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, तुम उन पे हमलावर हुए हो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जालिम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गासिबों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम सबसे बार बार आइन की दिफा का हल्फ दिया गया है, आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ, आओ हमारे साथ अकल शरीक करो, आए हमारे साथ कि हम इकट्ठे इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को, आइन को बचाएं और एक नए पाकिस्तान की तामीर जिसमें गरीब को रोटी का गुजारा हो, जिसमें हर फ़िरके का दूसरे फ़िरके के साथ जुल्म ना हो, जिसमें मज़हब की आज़ादी हो, जिसमें इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हो, जहाँ इंसाफ का दौर दौरा हो। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के भी मुजरम होंगे, हम खुदा के भी मुजरम होंगे। हमने फैसला कर दिया है। वो इकबाल, हज़रत इकबाल का शेर था, ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि उठो उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर व दीवार हिला दो, जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के अरखोश है गंदम को जला दो। हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान नहीं समझा। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फैसला किया है कि एक नए पाकिस्तान की तश्कील होगी, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील होगी। एक जी कैदी लोग यानी जिनको कैद होना चाहिए था, कातिल भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, वो फिर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। जो आवाम के लिए लड़ते हैं उनको या गोलियां मारते हैं या जेलें भर देते हैं। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने क्या किया है? अगर कुछ किया भी है तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप उसे, उसकी बहनों को, किसी भाइयों को, उसके लोगों से न मिलने दें। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी
ज़मीर का कैदी होगा, हमारा हर साथी अवाम की मफादात का कैदी होगा, और हमारा हक बनता है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। जो हमें ये नहीं करने देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियाँ लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सीढ़ियाँ